Welcome back to my channel Inspiring Minds by Tanishka Matwani. How are you guys? I hope you are doing well. Now, today I'm here with a new concept and I'm with a new energy today, and that is I will be teaching you guys the two cases of Civics Chapter 1 power sharing, and that is the case of Belgium and the case of Sri Lanka. Now, what you have to do is you have to take a notebook and a pen with you so that you can note down each and everything that you might feel that it is important. Now, let me begin with the case of Belgium. Now, as you can see at the board, the case of Belgium. Now, first you have to understand the first line. The ethnic composition of the country is very complex. Now, what do you mean by ethnic composition of a country is very complex? मतलब अलग अलग कल्चर्स के लोग जब एक ही कंट्री में रहते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो कंट्री में कॉम्प्लेक्सिटी लेके आती है. क्यों होता है ऐसा? कोई कम्युनिटी रिच होगी, कोई पावरफुल होगी और कुछ माइनॉरिटी में होगी और ना रिच होगी ना पावरफुल होगी. सो दैट इज व्हाई वो कंट्री में कॉम्प्लेक्सिटी ले आती है. सो बेल्जियम इज ऑल्सो द सेम सिचुएशन where one community is very strong and powerful and the other one is in minority. Now, as you can see, the Belgium is small as the state of Haryana. Belgium is from the Europe and it is as small as the state of Haryana in India, as we know. Now, as you can see the data, आप ये डाटा देख रहे होंगे, it is really very important. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So you have to just pay attention and keep in mind each and everything, and you can note down in your notebook too. Now, as you can see, the 59% people speak Dutch. This is the overall composition of the country, Belgium. ये पूरा overall composition है, पूरी population में से percentage है. Now, as you can see, 59% people जो हैं वो Dutch बोलते हैं and वो Flemish region में बोलते हैं. Now you have two regions specifically, the Flemish and the Wallonia region. Now 59% people, the 59% of the population speaks Dutch and they live in the Flemish region. The other 40%, जो दूसरे 40% वाले 40% people है, they speak French, वो French बोलते हैं and वो Wallonia region में रहते हैं. Now you have two specific region, that is the Flemish and the Wallonia. Speaks Dutch and lives in Flemish. Speaks French and lives in Wallonia. 59% Dutch, 40% French. हो गया, माइंड में घुसा गया. That's all. You have to learn with me so that you don't have to face any difficulty after this session. 1% German speaking. 1% is the German speaking. जो 1% है वो German speaking बेल्जियम से, जो बहुत माइनॉरिटी में बहुत कम लेवल पे है. वापस से रिवाइज करते हैं साथ में. तो अपन को यहीं पे फर्स्ट टाइम में अपने माइंड में याद कर लेना है कि क्या चीज है और क्या नहीं है, क्योंकि इफ यू विल लर्न फ्रॉम द स्टार्टिंग यू विल नॉट फेस एनी ऑफ द डिफिकल्टी. ओके, नाउ सी, अपन को बस सिंपली याद करना है कि 59% पीपल स्पीक्स डच एंड दे लिव्स इन फ्लैमिश रीजन. खत्म. 40% people speaks French and they lives in Wallonia region. 1% is German speaking. तो ये 3 डाटाज हैं जो कि आपको अपने माइंड में स्टार्टिंग से बिठाने, so that you do not have to face any difficulty. Now, अब इसके अलावा इसी कंट्री का एक और चीज है. Now you know that every country has a capital city. राज्य क्षेत्र जिसको कहते हैं अपन के इंडिया में दिल्ली इज द कैपिटल सिटी. ऐसे ही बेल्जियम में ब्रुसेल्स is the capital city of the Belgium. तो ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल सिटी. नेम यू हैव टू लर्न. ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी. नाउ 80%, अब ब्रुसेल्स में अपोजिट है. अपन पहले ओवरऑल देख रहे थे, अब अपन देखेंगे कैपिटल सिटी का क्या प्रोपोर्शन है. तो 80% तो वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% वहां पे डच स्पीकिंग है. अगेन 80% वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% वहां पे डच स्पीकिंग है. मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ ब्रुसेल्स की, कैपिटल सिटी ऑफ द बेल्जियम. वैसे ही अब आप देख सकते हो
कि जो ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में है वो ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में, और जो माइनॉरिटी में है वो वहां जाके मेजॉरिटी में। ओवरऑल तो यही है, बट ब्रुसेल्स में अपोजिट है, मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी में। तो यही चीज जो है कंट्री में एक तरह से टेंशन लेके आ सकती है, लेके आई है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग ब्रुसेल्स में ज्यादा है, तो ब्रुसेल इज अ कैपिटल सिटी, सो अगेन फ्रेंच स्पीकिंग इज द पावरफुल एंड रिच, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग कैपिटल सिटी में बहुत है मेजॉरिटी में, इसलिए वो रिच एंड पावरफुल है। और यही चीज टेंशन लेके आई बेल्जियम में, बिकॉज डच वालों को लगा कि हमारा कोई नहीं सुन रहा, फ्रेंच वालों की चल रही है, वही पावरफुल है, वही रिच है। बट ऐसा बेल्जियम में हुआ क्या कि ये सब टेंशन आई, इसको हटाने के लिए ऐसा हुआ क्या? नाउ यू कैन सी दिस साइड द अकोमोडेशन इन बेल्जियम। द अकोमोडेशन इन बेल्जियम मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसके थ्रू बेल्जियम वॉज स्टेबल। Now constitution was amended 4 times. Now we have India also has a constitution जिसमें लॉज लिखे हुए हैं, सब वो अपन को फॉलो करने पड़ते हैं, अपन उसको डिनाई नहीं कर सकते। वैसे ही बेल्जियम में भी कॉन्स्टिट्यूशन था, और कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, अमेंड बार बार बदला। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे कुछ लॉज लाने थे जिसके थ्रू बेल्जियम में स्टेबिलिटी है, क्योंकि कुछ मेजॉरिटी में थे, कुछ माइनॉरिटी में थे, और वो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए अकोमोडेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गवर्नमेंट ने, सो दैट वहां पे स्टेबिलिटी है। नाउ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या जिसके थ्रू ये बेल्जियम में वो है? तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने, यू हैव टू लर्न सो दैट यू कैन मेक योर आंसर। Now, it prescribes that ministers shall be equal from both the communities. Ministers दोनों communities, कौन सी majority वाली communities है? Dutch and French, दोनों communities से ministers equal होंगे। Now the second is many powers of the central government. जो central government है उसकी बहुत सारी powers state government को दी गई। कौन सी state government? Wallonia and the Flemish, Dutch speaking and French speaking, ठीक है? तो उन स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दी गई। नाउ द ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। पहले ब्रुसेल्स की वजह से टेंशन आई थी कि कुछ मेजॉरिटी में थे, कुछ माइनॉरिटी में थे, फिर ओवरऑल कंट्री में देखा तो वही लोग माइनॉरिटी में थे, वही लोग फिर दूसरे लोग मेजॉरिटी में थे, इसलिए ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे। डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटी से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे। Now fourth is there was another type of government. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, एंड ब्रुसेल्स गवर्नमेंट वाली थी। Now there was another type of government. This is a very important topic. Community government. Now community government क्या होता है? No matter where you live, आप कहीं भी रहो उससे कोई मतलब नहीं है। कम्युनिटी गवर्नमेंट सबकी अलग होगी, जर्मन स्पीकिंग की अलग, डच स्पीकिंग की अलग, फ्रेंच स्पीकिंग की अलग। यू हैव 3 कम्युनिटीज, इनको ये लॉज बनाएंगे, और फ्रेंच स्पीकिंग वाले अपनी कम्युनिटी को मानना ही पड़ेगा जो लॉज बनाएंगे। सो नो मैटर वेयर बिलोंगिंग लिव, कोई मतलब नहीं है कि तुम फ्रेंच कम्युनिटी वाले लोग और तुम कहीं भी रहो, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यू हैव टू फॉलो सर्टेन लॉज। आपको कुछ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट आर मेड बाय योर कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो क्योंकि आपकी खुद की कम्युनिटी से बने हुए लॉज हैं। सो दीज वर द 4 पॉइंट्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम द स्टार्टिंग। नाउ सी, अब मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की हैं जो मुझे लगा कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही आपको भी अपने नोट्स में या आपको आंसर में बोर्ड शीट्स में भी आपको ऐसे ही अंडरलाइन करनी है, सो दैट यू कैन स्कोर वेल in your boards. Now next move on the Sri Lanka, the case of Sri Lanka, to the next slide. Now the next is the case of Sri Lanka. Now this is the easiest one than the Belgium. Belgium थोड़ा सा difficult है और श्रीलंका उससे थोड़ा सा easy है। बस आपको एक चीज करनी है कि आपको स्टार्टिंग से लर्न करके अपने माइंड में वो चीज बिठा लेनी है, so that you don't have to face any difficulty. Now, as you can see at the board,
केस ऑफ श्रीलंका के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म? नाउ मेजोरिटेरियनिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट majority should rule and should make the laws for the country. मेजोरिटेरियनिज्म उसको कहते हैं. मेजोरिटेरियनिज्म मतलब जो कम्युनिटीज मेजोरिटी में है वही रूल करेगी और वही कंट्री के लिए लॉज बनाएगी. दिस इज द मेजोरिटेरियनिज्म. अब एज यू कैन सी द एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, आप देख सकते हैं कि 74% वो सिन्हाला स्पीकिंग. अब ये सेम डाटा, मतलब सेम तो नहीं बेटा, ये डाटा ऐसा ही है जैसा बेल्जियम में था, तो आपको इस डाटा को लर्न करना पड़ेगा. तो मैं आपको इसी सेशन में याद करवा दूंगी. नाउ 74% इज सिन्हाला स्पीकिंग. 74% इज अ सिन्हाला स्पीकिंग. माइंड में घुसा लो. 18% इज तमिलियंस. 18% इज तमिलियंस, जिसमें से 18% 13% नेटिव श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% वो तमिल्स हैं जो इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं. Now the next is 7% is Christians. Christians जो कि माइनॉरिटी में और वो 7% है. अगेन याद करते हैं, 74% सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी, 18% तमिलियंस जिसमें से 13% नेटिव्स जो श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडिया से माइग्रेट करे हुए तमिल्स. 7% आर क्रिश्चियंस. अब जो वहां पे श्रीलंका में ऐसे कौन से मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स थे? Now, as you can see, the majoritarianism measures. Now, Sinhala became the official language. Sinhala majority में थे, तो इसलिए सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया कि वो श्रीलंका की अब ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हमारे कंट्री की भाषा है, लैंग्वेज है. सिन्हाला तमिलियंस भी हो सकती थी या फिर क्रिश्चियंस भी हो सकती थी, या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं. तमिलियंस की अलग अलग डिमांड्स होंगी, क्रिश्चियंस के अलग होंगे, बट सिन्हाला ने अपना मेजोरिटेरियनिज्म रूल दिखाया और ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी सिन्हाला को. फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज. अब प्रेफरेंशियल पॉलिसीज होती क्या है? जितनी भी गवर्नमेंट जॉब पोजीशंस हैं या गवर्नमेंट कितनी भी पोजीशंस हो, भले वो कॉलेज में हो या फिर इंस्टीट्यूशंस में हो किसी, या फिर जॉब पोजीशंस हो, जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशंस हैं वो सारी सिन्हाला स्पीकर्स को, स्पीकिंग वाले कम्युनिटीज को दी जाती थी, क्योंकि they were in majority 74%. Now shall protect and foster सिन्हाला speaking. वो प्रोटेक्ट और फोस्टर भी सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग को ही करते थे. Now अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये सब आपकी क्लास में हो, फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी वाले ग्रुप आपको, आप माइनॉरिटी में हो और मेजोरिटी जो ग्रुप है वो रूल्स बनाए क्लास के लिए और आपको कहे कि आपको वही फॉलो करने और वही क्लास को रूल करे, तो आपको क्या लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, हमें सेपरेट किया गया है, हम इस क्लास के है ही नहीं और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. वैसे ही तमिलियंस की फीलिंग्स में भी सेम थी. दे फेल्ट एलिनेटेड, उनको एलिनेटेड सा फील होता था, सेपरेटेड फील होता था. दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, उनको सेपरेटेड, उनको भी एलिनेटेड फील हुआ, सेपरेटेड फील हुआ, एंड उनको लगा कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं अपने राइट से, सोशल पॉलिटिकल सारे राइट से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. नाउ अब अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लोगे सही. वैसे तमिलियन जो कि माइनॉरिटी में थे तो उनने भी एक्शन लिया. उनने क्या एक्शन लिया कि उनने स्ट्रगल्स ऑफ पार्टीज लॉन्च की और उनने ये डिमांड रखी कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस. और उनने एक चीज बोली कि हमें एक डिमांड है हमारी, और वो डिमांड है कि हमें तमिल अलग स्टेट चाहिए, डिफरेंट एक तमिल स्टेट चाहिए जिसका नाम इलाम होना चाहिए. उनकी डिमांड क्या थी कि उनको तमिल स्टेट चाहिए जिसका नाम इलाम होना चाहिए. सो डिमांड वाज डिनाइड, उनकी डिमांड डिनाइड हो गई गवर्नमेंट की तरफ से. एंड नेक्स्ट क्या हुआ, धीरे ही धीरे करके सिविल वॉर में हो गया, जो सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर. सिविल वॉर होता क्या है, जब एक ही कंट्री में अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, तब उसको सिविल वॉर कहते हैं. एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड, और हजारों में लोग मर गए. अब अपन ने केस ऑफ श्रीलंका भी देख लिया, केस ऑफ बेल्जियम भी देख लिया. इन दोनों केसेस से अपन को क्या पता चल रहा है कि पावर शेयरिंग इज रियली वेरी असेंशियल.
यही चैप्टर में ये दो केसेस का एग्जाम्पल देके चैप्टर में आपको ये बताना चाह रहे हैं हम, ये मोटिव है चैप्टर का कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये दो जो केसेस हैं, केस ऑफ श्रीलंका एंड केस ऑफ बेल्जियम, आपने देखा केस ऑफ बेल्जियम में लोगों को वो मिल गए, राइट्स मिल गए, पावर शेयरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, सब स्टेबली अच्छे से रह रहे हैं। बट श्रीलंका में क्या हुआ, पावर शेयरिंग नहीं हुआ और वो लोग आज भी सिविल वॉर हो रहा है, लोग मर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। सो दैट्स द थिंग कि आपको ये पता चल रही है कि पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ अब केस ऑफ श्रीलंका और केस ऑफ बेल्जियम, तो इन दोनों केसेस में एक केस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो बेल्जियम का या श्रीलंका का, क्योंकि इसके चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपके हाफ ईयरली में आएगा या आपके प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में, तीनों में से एक बार ये आपको केस जरूर, कोई केस क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। सो आपको अभी से ये चीज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन. So do subscribe my channel on YouTube as Inspiring Minds by Tanishka Matwani. And also you can comment any of your doubt in my at my channel. I will be solving your each and every problem. So bye.